Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I'm so happy that today the guest we have is himself is a power speaker. He's the one who is known to be, C-suite HR leaders. And अगर मैं अभी थोड़ी देर में उनका इंट्रोडक्शन करवाऊंगी तो उससे पहले मैं ये बता दूं कि he has been associated with almost I think 5 big organizations as chief HR officer. So I think यहीं से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि the one we are going to speak is a wonderful person to talk about the HR matters as well as the people think whatever going across in the industry and how the HR trends are evolving and how we need to take care of the people for that we are responsible. So with this I would welcome Mr. Ashar Saeed with us. Thank you very much. So thank you very much for being part of this discussion, and I'm so glad that you are here, and I'm feeling honored, in fact, that the discussion that we are going to have, inshallah, will be much beneficial for the people around us. Very kind of you to invite, and I'm really looking forward to it. अच्छा रजत साहब, आज जो है हमने पिछले सेशंस में काफ़ी अपने देखा होगा HR कम्युनिटी से मिलने का मौका आपको तो माशाल्लाह से ऑलरेडी रहता है और मुझे भी ऑन कैमरा ऑफ कैमरा भी मुलाकात होती है, तो काफ़ी हम जनरल HR के डिस्कशंस तो करते हैं, लेकिन आपकी प्रेजेंस का फ़ायदा उठाते हुए मैं चाहूँगी कि आज हम वो सवालात आपके सामने रखें जो कुछ बर्निंग क्वेश्चंस होते हैं या चुभते हुए सवाल होते हैं ना, जो अक्सर आपने भी सुने होंगे, मैंने भी सुने हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और तो हम ये आई थिंक हमने अच्छा लगा कि हम लेट्स ब्रिंग इट ऑन द टेबल एंड ट्राई टू फाइंड द सॉल्यूशंस। ज़रूर ज़रूर, why not? तो I'll try to do justice as much as I can. No, you will do inshallah because you are mashallah as a power speaker in fact, and I've seen you speaking mashallah. You speak with all its richness and उसकी पूरी जो comprehensiveness के साथ आप बात करते हैं, तो that send the message across. Thank you. तो सर बात शुरू करते हैं यहाँ से क्योंकि आपने टॉप लीडरशिप लेवल पे जो है ऑर्गेनाइजेशंस को, बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस को लीड किया है, तो हम एक टर्म यूज़ करते हैं कि हेल्दी ऑर्गेनाइजेशंस कुछ होती हैं जिनको हम कहते हैं कि एक हेल्दी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का एक अलग आपको एक एंजॉयमेंट होती है, सेटिस्फेक्शन होती है एंड यू फील गुड। ये हेल्दी ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, अगर थोड़ा सा इस पर आप एक्सप्रेस कर सकें, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट मेक एन ऑर्गेनाइजेशन अ हेल्दियर वन? जी देखिए, बड़ा आई थिंक वेरी क्रिटिकल क्वेश्चन एंड इट्स अ वेरी ब्रॉड question as well, because there are so many things that goes into making an organization healthy. But if I try and summarize it, healthy organizations are happy organizations, and happy organizations are a mixture or a compendium of 3-4 key things. One is that they have a very vibrant and healthy culture. And I'll try and define that as well. But first, let me cover the 3-4 pillars of a healthy organization. So culture is one. Learning is another aspect where people generally, whether they even know it or not, but they want to learn new things. They want to go out richer in the evening every day from the perspective of knowledge and from the perspective of skill that they joined with. And when they leave, they want to be richer. Third pillar relates to the overall attitude of the people around, where they want to feel respected, where they want to feel honored, where they want to feel as someone who has contributed, and similar things. So the attitude that they come across on a day-to-day basis in an organization, that contributes directly to the healthy or happy culture of the organization. Fourth and equally important thing relates to recognition. So whatever they do every day, they want to be recognized, and recognition should not be left to the end of the quarter or to the end of the 6 months or the annual appraisal. It should be an ongoing thing, and obviously it takes various forms and shapes. So recognition, attitude, respect, and the overall culture of the organization, they contribute to a happy life on any particular day and throughout the year, and that makes an organization healthy. Not what is generally deemed that if organization is very profitable, it's healthy, or if it is meeting its net working capital requirements or gross margins, it's very healthy. These are all eventual outcome of a healthy organization. सर आपने तो माशाल्लाह से ऑलरेडी जो पिलर्स हैं हेल्दी ऑर्गेनाइजेशन के इतनी डिटेल से मतलब
टच बेस किए हैं कि अब हर एक पे हमें कोशिश करूँगी कि इस थोड़े से टाइम में आपसे अपनी नॉलेज से फ़ायदा उठा सकें। आपने शुरू की बात हैप्पी ऑर्गेनाइजेशन की, बिल्कुल सही आपने कहा, एंड कल्चर की बात की, और लास्ट में आपने एक कॉम्पोनेंट डिस्कस किया, दैट इज़ रिकग्निशन। दोनों डेफिनेटली इंटीग्रेटेड हैं। आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है कि इवेंट पे रिकग्नाइज करना डेफिनेटली एक बहुत अच्छी चीज़ होती है, हमें करना चाहिए। कितना इम्पैक्टफुल होता है किसी इवेंट का वेट करके किसी को रिकग्नाइज करना, अप्रिशिएट करना, एक्नॉलेज करना, या वो 365 दिन होते हैं, हम उसके दौरान कैसे इस चीज़ को कनेक्ट कर सकते हैं कि जी साल के आखिर में जो आप किसी को रिकग्नाइज कर रहे हैं, तो दोनों का क्या फील और कितना इम्पैक्ट होता है इसका? आई थिंक बड़ा अच्छा ये वो है, एक थॉट है जो आपके जहन में आई है। इसका मेरे ख्याल से जवाब ये है कि एक तो बिल्कुल एज यू राइटली सेड दैट इट हैज़ टू बी ईयर राउंड एक्टिविटी which is recognition and should not be any event or occasion related. Why it is important and how it can be done? It is important because देखिए, सबसे पहले एक बड़ी बुनियादी बात समझना ज़रूरी है कि हर इंसान जो है उसमें अल्लाह ताला ने ये सलाहियत दी है कि वो जेन्युइननेस को फ़ौरन कैच कर लेता है। सो वेदर इट्स अ स्माइल और वेदर इट्स एन अप्रिसिएशन और वेदर इट्स बॉडी लैंग्वेज, जो जेन्युइन चीज़ होगी, स्माइल कोई फेंक दे कॉरिडोर में जाते हुए और आपसे बड़ा ही वार्मली ब्रॉड स्माइल एज वी से लाइक दिस, तो वो फ़ौरन सामने वाला पकड़ लेगा कि ये सिर्फ एक जेस्चर था या ये जेन्युइनली दिल से मुस्कुरा के मुझसे खुश मिजाजी से मिले हैं। तो इसी तरीके से जब आप सिर्फ एक क्वार्टरली इवेंट में रिकग्नाइज़ करते हैं, एक अच्छा सर्टिफिकेट देते हैं, साथ में एक वाउचर भी देते हैं दैट यू कैन यूज़ इट फॉर योर फैमिली एंड ऑल, और उसके फ़ौरन बाद द मोमेंट ही और शी रीचेज़ द डेस्क और वहाँ पे है सुपरवाइज़र का, लाइन मैनेजर का वही रवैया हो जो होता है, तो उस सर्टिफिकेट के कोई मायने नहीं है। दैट डजंट मीन एनीथिंग। तो इसलिए क्या चीज़ नज़र आ रही है इसमें कि इसका मतलब है उस सर्टिफिकेट के पीछे या पब्लिक रिकग्निशन के पीछे भी जेन्युइननेस नहीं थी। इट वॉज नॉट अ कंसिस्टेंट बिहेवियर, तो इसलिए वो उसको अप्रिशिएट नहीं करेगा एंड ही और शी विल रिमेन डिसएंगेज्ड and demotivated. That's why it's so important to bring genuineness to every single process, not only recognition in the organization, and that is absolutely immediately caught by the incumbent or the individual. और फिर उसके फ़वायद होते हैं, उसके फ्यूज़ बरक़ात होते हैं और फिर वो रिटेंशन की शक्ल में, मोटिवेशन की शक्ल में, अच्छा काम करने की शक्ल में नज़र आता है। सो येस, इट शुड बी अ डेली बिहेवियर in terms of nothing else except पैड ऑन द बैक, वेल डन, गुड जॉब डन, और उसमें टोन में जेन्युइननेस नज़र आ जाएगी। अगर सिर्फ इतना हो रहा है तो भी दिस इज़ गुड इनफ फॉर अ लॉट ऑफ पीपल, इफ़ नॉट ऑल। वो इससे बड़े खुश होते हैं अगर उनको पता चल जाए कि वाकई मेरे काम को अप्रिशिएट किया गया है। ये दिस इज़ ट्रू फॉर ऑल, स्पेशली ऑल दोज पीपल हु वेरी क्रिएटिव आदमी को जहाँ कॉम्पनसेशन या रिवॉर्ड चाहिए होता है, वहाँ उसको दाद भी चाहिए होती है। तो अभी देखिए, यहाँ तो मुझे सवाल करना पड़ेगा आपसे कि वो जो होता है ना हमारे जहन में, बहुत दफ़ा एज ए मैनेजर हम दूसरी साइड बैठे होते हैं टेबल की, कि जी तारीफ़ कर दी तो ये तो बस समझे कि आज कल से तो ये काम भी नहीं करेंगे। वो हमारे फेयर मैनेजर्स के जहन में क्यों होता है बहुत दफ़ा एज ए लाइन मैनेजर कि अगर तारीफ़ कर देंगे तो कहते हैं वो एक सॉरी टू से लेंगे सर पर चढ़ जाएंगे, आपके जहन में वाली बात आ जाती है। मतलब जनरली ये होता है कि जी तारीफ़ ज़्यादा नहीं करो, ठीक है, अगर गलती डेफिनेटली होती है, मैनेजर का काम उस पर फीडबैक देना भी होता है, स्कोल्ड करना भी होता है, वो कर लेते हैं, लेकिन उतनी फ्रीक्वेंसी से पैट ऑन द बैक, जैसे आपने कहा, कोई आपने कोई बड़ा गिफ्ट नहीं देना, कुछ नहीं करना, लेकिन यू जस्ट एक्नॉलेज। इस पे प्लीज़ आपको कमेंट मिलनी चाहिए। देखिए, जो इंटरेक्शन होती है किसी भी एम्प्लॉय की अपने लाइन मैनेजर से, मैं किसी ख़ास लेवल ऑफ सुपरवाइज़र या बॉस की बात नहीं कर रहा, जो जिसका बॉस है वो उसका लाइन मैनेजर उसका बॉस है, वो इंटरेक्शन जो हम कहते हैं कि वो बहुत ईजी हो जाएगा और हम अपनी जैसे कहते हैं लेमैन्स लैंग्वेज में कहते हैं कि चौड़ा हो जाएगा, तो वो चौड़ा ऐसे नहीं होता। वो चौड़ा जब होता है इसलिए कि जो सुपरवाइज़र है, जो लाइन मैनेजर है, उसका बिहेवियर 360 उसके सामने होता है। सो ही इज़ नॉट ओनली लुकिंग एट दैट पर्टिकुलर पैड ऑन द बैक और अप्रिसिएशन दैट हैज़ हैपेंड एट अ पॉइंट इन टाइम, वो पीरियड ऑफ टाइम में उसका बिहेवियर देख रहा है। तो अगर उसको ये पता है कि ये तारीफ़ भी जेन्युइन करता है, लेकिन जहाँ पे बात आएगी डांट की तो वो डांट भी देगा, तो वो चौड़ा नहीं होगा, बिकॉज ही नोज हिम इंटायरली और हर इंटायरली, whoever the boss is, he or she. तो देन हिज बिहेवियर वुड बी टेलर्ड एंड कस्टमाइज्ड कि मुझे कोई ज़रूरत नहीं है इस वक्त मैं कि बिल्कुल फैल जाऊँ या लेट जाऊँ,
इसलिए कि जब मैं काम गलत करूँगा तो ये उतने ही शद्दोमत से मुझे मेरी तंबीह भी करेगा, मुझे डांटेगा भी, तो वो कभी भी उसको फॉर ग्रांटेड नहीं लेगा। बिल्कुल सर, यू आर स्पॉट ऑन। बस यहाँ पर एक सजेशन, एक टिप अगर आप मैनेजर्स को दे सकें, क्योंकि देखिए हम जब पढ़ते थे तब भी कहते थे वो एक गुडी मैनेजर का कॉन्सेप्ट होता है ना, हम एज ए मैनेजर भी या शायद एज अ पर्सन बहुत दफ़ा टिल्ट हो जाते हैं एक तरफ। अच्छे हैं तो मतलब अच्छी चीज़ों को बहुत अप्रिशिएट भी करेंगे तो ठीक है, उसमें बहुत दफ़ा वो चीज़ शेडो हो जाती है, और बहुत कभी ऐसा है कि अगर ठीक है वो जो होता है शेडो माइंड हो जाता है कि जी अगर कोई अच्छा नहीं है तो बस वो अच्छा नहीं है, कुछ भी कर ले। इसमें मैं चाहूँगी आप प्लीज़ एक आपकी एडवाइस बहुत मैटर करेगी टू द पीपल मैनेजर, जो भी पीपल मैनेजर हैं, चाहे वो सीनियर हैं चाहे जूनियर हैं, लेकिन उनकी टीम में कुछ लोग हैं, हाउ दे कैन बैलेंस। जो मुझे लगता है कि कैंडिड होना अच्छा है तो अच्छे को भी बने, और जो जहाँ पे गलती है उसको भी कैंडिड तरीके से एड्रेस करें। हाउ मैनेजर कैन बैलेंस दैट थिंग सो दैट वो जो आपने कहा कि एग्जैक्टली ऐसा ही रहो। देखिए, ऑल गुड थिंग्स इन लाइफ डू नॉट कम नेचुरली, दे हैव टू बी लर्नड। अगर ऐसा होता कि ऑल गुड थिंग्स वुड हैव कम नेचुरली टू ऑल ऑफ अस, तो ऑल ऑफ अस वुड हैव स्कोर्ड 100 out of 100 in everything on the planet and would have excelled. If that would have been the case, then God would not have sent a book or would not have sent his messengers कि तुम लोगों को यहाँ अपने आप को इस एतबार से इस बेंचमार्क पे बेहतर करो। सबके सब पहले ही बेहतर होते फितरतन, और सबके सब 100 स्कोर कर लेते और सब जन्नत में चले जाते, लेकिन ऐसा नहीं है। सो वी हैव टू वर्क ऑन आवरसेल्व्स ऑल द टाइम। सो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, दिस पर्टिकुलर हम एक स्पेक्ट्रम पे जिंदा हैं हम सब। उस स्पेक्ट्रम के कुछ लोग शुरू में खड़े हैं, कुछ बीच में हैं, और बहुत थोड़े लोग हैं जो उस स्पेक्ट्रम में बहुत आगे जा चुके हैं। सो ये जो लाइन जिस पीपल मैनेजर की आप बात कर रही हैं, इस पीपल मैनेजर को भी ये सीखना होगा कि हाउ टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन कंसर्न फॉर टास्क and concern for humans. It has to be a very fine balance. And you rightly said that some people have all the focus on concern for humans. They are very goody-goody. They are very compassionate. They are very empathic. और उसमें वो टास्क की कुर्बानी दे देते हैं. And vice versa. Some people are fiercely focused on task. इतना कि वो ये एहसास करना छोड़ देते हैं कि इसके अपने भी कोई मसाइल हो सकते हैं, इसके अपने भी कोई चैलेंजेस हो सकते हैं, इसको कोई एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट हो सकते हैं वेयर ही नीड्स आवर फैसिलिटेशन एंड हेल्प। ये दोनों सही नहीं है। तो ये स्ट्राइक करने के लिए बैलेंस को एफर्ट करना पड़ेगी उस पीपल मैनेजर के, लाइन मैनेजर को, और उस ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को। इन आइडियली इफ सम पर्सन इज रियली स्ट्रगलिंग फॉर दिस बैलेंस, then in the first place he or she should not have been made a people's manager. ऑर्गेनाइजेशन में कहीं पे फॉल्ट लाइन है जो ऐसे लोगों को प्रमोट करके एलिवेट करके ऊपर ला रही है जो ये बैलेंस ही स्ट्राइक नहीं कर पा रहे। तो पहला इशू तो वहाँ पर आ गया है बिफोर इट इज़ एड्रेस्ड एंड ऑब्वियसली द करेक्टिव एक्शन इज टेकन। ऐसा तो इनिशियली फर्स्ट प्लेस में होना ही नहीं चाहिए। और आपका सवाल वैलिड बहुत इस वजह से भी है कि ऐसा रैम्पेंट है, ऐसे लोग पीपल मैनेजर बन रहे हैं जो इस बैलेंस को स्ट्राइक नहीं कर पा रहे, और देन दैट क्रिएट्स अ डिमोटिवेशन। एंड वेरी राइटली यू हैव पॉइंटेड आउट, आई थिंक बहुत ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट है जो कि डेफिनेटली फिर अगेन एचआर के एम्बेट में आ रहा होता है कि जब हम ग्रोथ पैटर्न पे होते हैं या टैलेंट मैनेजमेंट सिस्टम हमारा जो होता है एचआर इसको ड्राइव कर रहा होता है ना, ठीक है, उसमें बहुत सारे और भी स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन आई थिंक जो एचआर की तरफ से चीज़ की जा सकती है, आपने बिल्कुल सही कहा कि जब हमें मेजॉरिटी एक्चुअली ना कहें, लेकिन एक अच्छी तादाद नज़र आती है मैनेजर्स की जो स्ट्रगल करते हैं ये वाला बैलेंस स्ट्राइक करने में, तो क्या चीज़ें हो सकती हैं? वी टॉक अबाउट साइकोमेट्रिक टेस्टिंग, वी टॉक अबाउट बिहेवियरल एलिमेंट वाला कि उसको कैसे असेस किया जा सकता है। हाउ एचआर कैन सपोर्ट दिस सिस्टम जो टैलेंट मैनेजमेंट का होता है कि जिसमें जब लोग ऊपर आएँ तो ये नहीं कि जब वो टॉप की पोजीशन में पहुंच जाए तो तब अगर उस वक्त भी आपका बिहेवियर ऐसा ही हो तो नीचे ऑर्गेनाइजेशन का जितना बड़ा सफ़र लोग करते हैं वहाँ तक पहुँचने से पहले ही ज़रा सी अर्ली फेज़ पे जब वो मैनेजर बनने के सफ़र पे होते हैं या लीडर बनने के सफ़र पे होते हैं, वहाँ इस बिहेवियरल मैनेजमेंट को, इमोशनल मैनेजमेंट को कैसे एड्रेस किया जा सकता है? एचआर क्या क्या कर सकता है उसके लिए? देखिए, आइडियली द वे इट हैपन्स इन टर्म्स ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस, anyone and everyone, there are 2 to 3 transitions in HR hierarchy or in the organizational hierarchy. Sorry. Which are basically, when I say transition, initially you are doing a job
at a lower management level, which is very mechanical. Then you get to the middle management, and there you start doing a job which is slightly more bigger scope and a little more complex. और उसके बाद फिर आप completely people management job में आ जाते हैं, which is the senior management level. इन दोनों transitions से पहले की एक कुछ prerequisites होना चाहिए. उन prerequisite पे if someone is not coming up to the benchmark or up to the standards, then he or she should not be elevated into that particular cadre of the organization. That can be done through, as you said, doing some psychometric testing. If the person is emotionally and behaviorally ready to get into that role, alongside obviously technical knowledge and skills, which are required at every level, and some interviewing also, and some behavioral assessment from line managers, and some 360. Based on all these four things, 360, line manager, behavioral assessment, which is psychometric, and then technical assessment, क्या ये इंसान जो है ready है to get into that level? अगर ऐसा हो रहा है तो फिर we'll be able to minimize, not eliminate, minimize कि अच्छे people managers निकल के organization में आए. अगर ऐसा नहीं होगा, just based on very subjective assessments ये होगा, तो फिर इस तरह की fault lines आती रहेंगी. तो ये बड़ा ज़रूरी है इसको एक properly, in a proper professional way इसको take up किया जाए और उस तरह से किया जाए. हाँ, on a more practical side, since organizations which consist of people, they operate out of biases, they operate out of know all attitudes, कि जी मेरे साथ काम कर रहा है, मुझे पता है कि ये बिल्कुल ये बेहतरीन होगा. अब वो पता उसको इसलिए है कि वो तो उसको खुश करता रहा है. He has been a great subordinate. तो इन biases को remove करना और या minimize करना और इन know all attitudes को counter करना, I think that's where HR has to step in with the support of the senior management and put the corrective action in place. वरना फिर HR will continue processing whatever they are processing. बिल्कुल सही कहा आपने सर. जब आई थिंक टेक अवे यही है, आई थिंक मैसेज टू द ऑर्गेनाइजेशन के ये मैं बहुत दफ़ा इस बात पे चाहती हूँ कि हम ये डिस्कशन होना चाहिए कि जब आपकी लीडरशिप लेवल आपका जब बन रहा है, जो भी लोग लीडरशिप जर्नी पे हैं, तो सिर्फ उनकी काम में डेफिनेटली दे वुड बी ए+ या बेहतरीन उनकी परफॉर्मेंस होगी, लेकिन दैट शुड नॉट बी द ओनली क्राइटेरिया फॉर प्रमोटिंग पीपल. स्पेशली जब भी किसी को पीपल मैनेजर बनाने आप जा रहे हो, पीपल लीडर बनाने जा रहे हो, जब उनके नीचे एक टीम होगी, वहाँ पर उनका बिहेवियरल असेसमेंट इज़ मैंडेटरी. अब वो ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन कुछ भी कर सकती है, वो चाहे साइकोमेट्रिक करे, चाहे वो कोई और तरह का असेसमेंट करे, या कोई 360 फीडबैक ले ले, कुछ भी ऐसा करें, लेकिन देयर शुड बी एन असेसमेंट, बिकॉज जनरली वी मिस दैट पार्ट इंटायरली. काम में बहुत अच्छे हैं, वंडरफुल, टेक्निकल नॉलेज वंडरफुल है, आपने प्रमोट कर दिया, ठीक है ना. आई थिंक दैट्स वेयर आई थिंक द मिस्टेक इज. अच्छा सर, आपने शुरू में जो बात की थी हैप्पी ऑर्गेनाइजेशन की. अच्छा, हैप्पी ऑर्गेनाइजेशन के जो है ना वो बहुत सारे अगैन एक बड़ा वास्ट टॉपिक है, लेकिन कुछ चीज़ें अगर उसमें हम टच बेस कर सकें आज, वो ये कि जो उसमें हैप्पी ऑर्गेनाइजेशन में क्योंकि आप HR से मेनली आप हैं, तो HR का क्या रोल है, कौन कौन सी चीज़ें ऐसे वो कर सकते हैं. जैसे एक चीज़ मैं कहती हूँ जो मैंने देखा है कि हैप्पी ऑर्गेनाइजेशन को थोड़ा सा मसला करती है, वो ये कि फॉर एग्जाम्पल हमारे, क्योंकि हम HR में हम रूल्स बनाते हैं, पॉलिसीज़ बनाते हैं, बहुत कुछ बनाते हैं, तो एक चीज़ मैं ऑन द टेबल लेके आती हूँ जिस पर अगर डिस्कशन ये होता है कि जी ये जो हमारा 9 to 5 वाला स्टिकिंग टू द मिनट्स एंड सेकेंड्स ऑफ योर वर्क शेड्यूल, इज़ इट रियली नेसेसरी आज की दुनिया में? ये ज़रूरी है कि जी आपने 9:10 पे लेट लग जाएगी या 8:36 पे लेट लग जाएगी, ठीक है आपको डिसिप्लिन लेके आना आता है, लेकिन हाउ effective it is nowadays? What's your comment? देखिए, I'll start from a more broader perspective, where actually you started from in terms of happy organization. In order to make a happy organization, we have to be, when I say we, I mean HR has to be in very, very close proximity of employees. Very connected with employees, which means what? That HR has to, this is one of the key roles of HR by the way, to continuously get pulse from the employees. That pulse will actually tell you that how happy or unhappy they are. If people are not opening up in front of HR, which means not only HR head but HR BPs and whoever is responsible for certain number of functions or departments in the organization, they
this pulse will actually tell HR okay, what is happening, how happy people are, and if they are not, then what are the reasons. These reasons are gauged more formally through an employee engagement or employee satisfaction survey. अभी जो ट्रेंड है हमारे यहाँ वो ये है कि एम्प्लॉय एंगेजमेंट सर्वे नॉर्मली होते हैं once in 2 years. आई थिंक द वर्ल्ड हैज़ मूव्ड ऑन इन टर्म्स ऑफ पेस. इतनी कोई फ्रेंटिक पेस है इस वक्त डेवलपमेंट की भी, ग्रोथ की भी, कि उसमें 2 साल में एक दफ़ा का एम्प्लॉई सेटिस्फैक्शन या एंगेजमेंट सर्वे इज़ नॉट गुड इनफ. इट शुड एटलीस्ट हैपन एनुअली. ऑल्सो नॉट ओनली एनुअली बल्कि एक पल्स चेक भी, एक छोटा मुन्ना एम्प्लॉय एंगेजमेंट सर्वे 6 महीने होना चाहिए, जिसमें आपको पता चल सके व्हाट डू पीपल वांट, व्हाट इज़ मेकिंग देम डिससेटिस्फाइड, डीमोटिवेटेड, डिसएंगेज्ड, व्हाट इज़ बॉदरिंग देम, सो दैट यू कैन इमीडिएटली कम अप विद एक्शन प्लान एंड एड्रेस दोज थिंग्स. अब आते हैं आपकी स्पेसिफिक बात के ऊपर जो आपने 9 to 5 की या वर्क टाइमिंग्स की. आई थिंक गॉन आर द डेज, बिकॉज इस वक्त जो हम टारगेट कर रहे हैं, इस वक्त जो हम लेकर आ रहे हैं और लेके आ के आ रहे हैं, वही ऑप्शन है हमारे पास, कोई और ऑप्शन है नहीं ऑफ द जेन जीज. और जेन जीज वो जनरेशन है विच इज़ बॉर्न बिटवीन 1997 एंड 2010. यही लोग हमारे वर्क फोर्स में इस वक्त आ रहे हैं और आने वाले सालों में मजीद आएंगे. दे विल फॉर्म अ सिग्निफिकेंट चंक. At least good 25 to 30% of the employees will be from Gen Zs, and they are the ones who are more energetic, they are the ones who are more innovative, they are the ones who are technology equipped. तो वो अगर engaged नहीं है और happy नहीं है, और वो क्यों engaged नहीं हो रहे, जो आपने जो point raise किया कि they are extremely perturbed and concerned about this 9 to 5 thing. They are someone who want to work on a hybrid note, who want to work on a flexible note, who are not at all convinced कि जी मुझे 9 बजे पंचन करना है. They are more convinced on the deliverables, they are more convinced on the results कि आप मुझसे रिजल्ट मांग लीजिए, आप मुझसे ये आउटकम जो आपने लिख के दिया है ये आप ले लीजिए, लेकिन 9:05 पे if you want me to arrive at office as a demotivated individual, that's your call. I'll look for another opportunity. And I'll leave whether that is within Pakistan or outside Pakistan. So we, instead of shunning it, that attitude, instead of getting overcritical about it, यार ये लोग कितने inflexible हैं, ये कुछ समझ नहीं रहे बात को, मतलब हम तो ऐसे करते थे, भाई बिल्कुल करते होंगे और वो भी गलत नहीं था, but it's about time and age. तो वो this reminds me, I mean I'm very, poetry is very close to my heart. तो इकबाल सेठ के आईने नौ से डरना, तर्ज़े कोहन पे अड़ना, मंजिल यही कठिन है कौमों की ज़िंदगी में. सो आईने नौ से डरना ये आज का मुद्दा नहीं है, ये हमेशा से ऐसा ही है कि नई चीज़ को रेजिस्ट करना, कि तर्ज़े कोहन पे अड़ना, पुरानी तर्ज को अपहोल्ड करना. Not on. We need to get extremely adaptable and flexible with the requirements of the people who are going to take it deeper into the 21st century. So that is what it is. आई थिंक व्हाट एन विजनरी. आपने क्योंकि पोइट्री की बात की थी, क्योंकि इकबाल का तो वो भी जो है ना कि लाइक जवानों को पीरों का उस्ताद कर, तो उन्होंने बहुत साल पहले भी कह दिए थे कि लाइक अगर आपको जागते रहना है, अलाइव रहना है, तो जो नई जनरेशन आ रही है, एग्जैक्टली एज यू सेड, मैं भी ये कहती हूँ कि रिसोर्स तो यही है ना, आप कहाँ से लाएंगे सर, क्या आप बाहर से लेकर आ जाएंगे, रिसोर्स यही है, इन्होंने ही आना है. अब आपने मेंशन किया हाउ मच परसेंटेज ऑफ द पीपल अंडर 25? 65% of Pakistani population is at least below 30. ठीक है, एंड दे आर द वंस हु आर एंटरिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन. Correct. अब उन्होंने आना है, तो ऑर्गेनाइजेशंस को भी थोड़ा सा आई थिंक एक टेक अ पॉज एंड थिंक अबाउट हाउ दे कैन बेटर केटर. उनकी क्या नीड्स हैं, उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, हाउ वी कैन बेटर फैसिलिटेट एंड कीप देम हैप्पी. आज की हमारी थीम हैप्पी निकल के आ रही है. बिल्कुल सही कहा. अच्छा सर, जो शुरू अपनी एक बात और की थी ना कि हैप्पीनेस की तो खैर बहुत एक तो एलिमेंट मुझे लगा था कि यहाँ पर लोगों को बहुत बॉदर करता है ये वाली चीज़. दूसरा ये कि आपने बहुत एक अच्छी चीज़ शुरू में वहाँ से आपने बात शुरू की थी कि HR नीड्स टू बी दैट क्लोज, ठीक है, टू द पीपल. अभी मुझे आपने भी देखा होगा कि जो लोग एक वो बहुत वायरल भी हुआ था ना, उसके लिए HR वाले करते क्या हैं, जो शायद एनुअल डिनर करा देते हैं. एक तो ये ठीक है कि दूसरी तरफ भी परसेप्शन वाला इशू होता है कि ठीक है हमारा शायद बहुत HR का इतना क्लोज लोगों से रब्ता नहीं होता, तो इस वजह से शायद ऐसा होता है. या व्हाट आर द रीजंस दैट यू थिंक इसमें HR का कोई फॉल्ट है, वो क्या है, उसको कैसे ही करना चाहिए, या इट्स ऑल अबाउट द परसेप्शन?
देखिए, it's a mix of things. It's a mix of things. Why? Because everything is evolutionary. So is the role of HR also. Like all other areas of the organization, HR started off initially as admin. So let's say 40 years ago, there just used to be an administration department in the organization. It evolved to personnel, and then it evolved to the initial phase of HR. And honestly, still it is so that we are still in a nascent stage of HR. We are not very advanced HR. So people still deem it to be, when someone says HR, उनके जहन में वही admin और वही पर्सनल टाइप की चीज़ आती है, विच वॉज मोर ऑफ पुलिसिंग. पुलिसिंग इन वॉट सेंस? पुलिसिंग इन टर्म्स ऑफ अटेंडेंस, पुलिसिंग इन टर्म्स ऑफ ओवर टाइम, पुलिसिंग इन टर्म्स ऑफ the application of leaves and all that stuff. सर वो तो करेंगे ना, तो हमारा काम है, करेंगे. वो हमारा काम ही है. बट जब चूंकि वो सिर्फ यही करते थे, तो वो परसेप्शन फॉर्म हुआ. वो परसेप्शन अब तक चल रहा है, और HR का ये रोल है कि उस परसेप्शन पे वो काम करे, और काम खाली बोलने से ना करे कि नहीं हम वैसे नहीं हैं. Actual whatever value they add will actually eventually gradually instill that new perception into the people in the organization, the customers of HR, कि नहीं यार HR तो वैल्यू ऐड कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल, अगर HR करियर काउंसलिंग कर रहा है, करियर प्लानिंग कर रहा है, तो उन इंडिविजुअल के साथ बैठ के करेगा या उसके लाइन मैनेजर के साथ, देन दे विल स्टार्ट रियलाइजिंग एंड दिस थिंग विल स्टार्ट सिंकिंग इन कि यार HR तो खाली पॉलिसी इन्फोर्समेंट नहीं कर रहा, HR तो हमारी ज़िंदगी में दिलचस्पी ले रहा है. तो वो परसेप्शन में चेंज आना शुरू होगी. इट विल टेक टाइम, बट इट विल हैपन. बट अनफॉर्चुनेटली, नॉट ऑल, but quite a few HRs are not doing that. They are still trying to use the strong arm tactic, as they say, which is not right, because HR has to come out in the open as an enabler, as a facilitator, as someone who will act as a catalyst to spur growth in the organization by taking genuine interest in the careers and lives of people. तो भी HR को इसमें मेहनत करनी पड़ेगी. मैं इसका सारा इल्ज़ाम ऑल्दो आई हैपन टू बी अ करियर HR प्रोफेशनल, बट मैं ये नहीं करूँगा कि मैं कह दूँगा जी सारे लोग जो हैं वो गलत हैं जो ऐसा कह रहे हैं और HR को टारगेट किया हुआ है, और CEO और सीनियर मैनेजमेंट तो यकीनन वो भी गलत हैं कहीं ना कहीं. उनको दे ऑल्सो नीड टू डेवलप अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फंक्शन ऑफ HR, जो उनकी नहीं है. अभी तक वो HR को कई जगह पर, नॉट एट ऑल प्लेसेस बट कई जगह इसलिए यूज़ किया जाता है कि CEO अपने एजेंडे को रोल आउट करे, और HR हेड को और HR टीम को वो समझते हैं कि ये इनके क्या कहते हैं, नुमाइंदे हैं, एम्बेसडर्स हैं, या ये वो ज़बान बोल रहे हैं. तो ये गलती बाकी लोगों की, ऐसा नहीं है. HR is playing a very very key role in many organizations, but at the same time both actually have to cover some distance to come to a stage where HR is deemed to be a value added service rather than someone who are just keeping records. बिल्कुल ऑन स्पॉट आई वुड से कि आपने जो बात की थी उसका टेक अवे ये है कि फॉर द HR पीपल हु विल बी लिसनिंग टू अस के वो तो एक बेसिक काम है जो हमें करना ही है, देखिए पॉलिसी, कंप्लायंस एंड लीव का ऑपरेशन साइड से, बिकॉज वी आर द वंस हु रेगुलेट थिंग्स. तो इसलिए वो तो ठीक है, आपका रोल रहेगा. लेकिन जहाँ पर वैल्यू एडिशन आएगी वहाँ पर आई थिंक जो ट्रस्ट बिल्डिंग है, या जो अपने डिस्टेंस की बात की उस क्लोजनेस को, आई थिंक वहाँ पर फिर हम देख सकते हैं कि वो आसान हो जाती है उसे करना. जैसे आपने जब बात की थी कि ये जो हैप्पी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ वापस आते हैं, कि इसमें आपने लर्निंग के लिए भी जिक्र किया, तो बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि ठीक है हम समझते हैं कि शायद ये एक पिंग पोंग होता रहता है कि फॉर एग्जांपल कि ये ठीक है कितना ज़्यादा ये रोल एक मैनेजर का है अपने लोगों की डेवलपमेंट में, ना हाउ HR प्लेज अ रोल देयर फॉर द डेवलपमेंट. Actually, HR, as I just said, and we also discussed that offline when we were having some discussion, that HR's key role are actually three. One is as a business partner, second is as a culture builder, and third is as a custodian of policies.
So when it comes to culture builder, which is a very broad thing, under culture building, when we need to have a certain culture in the organization which will give fuel to the growth, then we need to have the right people as well. When we talk about the right people, then those right people have to be rightly guided, hired, guided, developed. When we talk about development, which is your question that you have asked, then HR needs to act as an enabler. That's the best HR can do. Development bit will not be done by HR. HR will only guide the whole process, because HR doesn't know what a production planner needs to do in his assignment. HR can only look at the appraisal or review of that individual, जिसमें हाईलाइट किए गए हैं कुछ गैप्स उसकी जॉब के. HR को नहीं पता वो गैप्स क्या है और उन गैप्स को कैसे फिल किया जाएगा. So the line manager, the functional head will sit down with HR, और HR will sit down with them as enabler कि जी ये चीज़ें आप ही ने हाईलाइट की हैं. अब इनके इसको आपने ये भी रेट किया है कि ये हाई पोटेंशियल एम्प्लॉई है, तो अब हमें इसको डेवलप करना है नेचुरली, और इसके जो ये गैप्स हैं इनको मिनिमाइज़ करना है. तो आप क्या सजेस्ट करते हैं, ये डेवलपमेंट कैसे हो सकती है? वो कौन से ट्रेनर्स हैं जो इसको हेल्प करेंगे? वो कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स इसको भेजना है जहाँ पे प्रोडक्शन प्लानिंग को ये सीखे? HR will only guide the process, will only enable, will only facilitate, so that people and will obviously keep a track of it. That means that HR and the people managers need to be very close. Very close. ये बहुत ऑनगोइंग डिस्कशन होना चाहिए जिसमें ये बात हो और ये डिस्कशन हो कि जी आपकी जो अदर दिन आपके जो काम है कि भाई लीव्स नहीं हो रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, उसके अलावा आपका जो बेसिकली पीपल रिलेटेड है, टैलेंट टॉक जिसको हम कहते हैं, कि दैट नीड्स टू टेक प्लेस. Absolutely throughout the year, and obviously not only it should be discussed, it should be documented as well. वरना फिर वो जो चीज़ something that is not, as they say, something that is not measured doesn't get done. तो मेजरमेंट भी इसकी होनी चाहिए, विच इज़ रिकॉर्ड बेसिकली, कि भाई ये बात हुई थी 6 महीना पहले, ये इसका प्लान हमने तय किया था, इस प्लान पे हम यहाँ तक पहुँचे हैं, तो कितना रह गया है, वहाँ तक क्यों नहीं पहुँचे, और अगर पहुँच गए हैं तो व्हाट्स नेक्स्ट. और अगर मैनेजर्स नहीं कर रहे हैं, जो कि मेजॉरिटी ऑफ द टाइम वो इसलिए नहीं कर पा रहे होते कि उनको, क्योंकि उनकी इतनी बहुत कम ऐसा होता है, अगर शायद कम रेशो होगा मैनेजर्स का जो कि खुद प्रोएक्टिवली अपने लोगों की डेवलपमेंट के लिए आगे आ रहे होते हैं या बात कर रहे होते हैं. अगर नहीं हो रहा तो एटलीस्ट HR के ऊपर ये ज़रूर आ रहा होता है कि लाइक दे शुड कम अप, एंड डेफिनेटली आपने उस पर काम वो नहीं करना है, लेकिन आपने सिर्फ उस प्रोसेस को ड्राइव करना होता है. हैव अ डिस्कशन विद द मैनेजर, व्हाट दे आर थिंकिंग अबाउट देयर पीपल, व्हाट आर देयर, सो लाइक क्वार्टरली या जो भी आप एक टाइम सेट करें, बट यू नीड टू हैव अदर देन द रूटीन थिंग्स एक पीपल रिलेटेड डिस्कशन कम से कम होना चाहिए. व्हाट यू से? बिल्कुल होना चाहिए. और साथ में ये भी होता है कभी कभी, बल्कि काफ़ी होता है, कि when HR is actually is a very challenging job. Why? Because in one place you have to drive the best for the organization, in the best interest of the organization, which is developing people, which is enforcing policies or implementing policies. On the other side, HR has to have a very compassionate heart as well. अब इन दोनों चीज़ों का जो इम्तिजाज है ये आसान नहीं है. अगर आप वो चीज़ ज़्यादा कर देंगे तो लोग कहेंगे कि जी HR तो बिल्कुल ढीला है, सिर्फ लोगों के लिए जो है ना, बस ऑर्गेनाइजेशन से उनके लिए बेनिफिट्स के लिए फ़ाइट कर रहा है और उनको दे रहा है, काम की बात ही नहीं कर रहे हैं. और अगर आप जब काम की बात करने के लिए आते हैं, वेयर एज वी जस्ट सेड के पीपल डेवलपमेंट पे बॉसेस के साथ बैठ के आप, पीपल मैनेजर्स के साथ बैठ के आप बात करें, तो कई दफ़ा ऐसा होता है कि वो ऊपर से बात कर रहे होते हैं, अंदर से वो इनसिक्योर हो रहे होते हैं कि अगर जिस हाई पोटेंशियल के लिए HR हमें पुश कर रहा है, अगर ये दो चीज़ें जो इसको नहीं आती ये भी सीख गया, ही माइट चैलेंज माई जॉब. तो वहाँ पर देन दे स्टार्ट बैड माउथिंग HR कि ये पता नहीं क्या कर रहे हैं, किस चीज़ में लगे हुए हैं, ये तो आई मीन दे शुड बेटर फोकस ऑन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग्स. देन HR नीड सपोर्ट ऑफ द टॉप मैनेजमेंट, और अगर वो सपोर्ट ना हो, इट्स ऑल ओवर. आई थिंक बिल्कुल आपने जो है ना ये जस्ट हिट दैट दिल. ये जो बात होती है वो तो कि हम जो आई थिंक ये परसेप्शन ओवर द टाइम आता है साथ साथ कि जो मैनेजर्स या पीपल लीडर से आप डिस्कस करते हो तो वो कहीं जो फीलिंग आती है ना ये वाली कि शायद दे आर नाउ गेटिंग इनटू देयर जॉब्स. ऐसा नहीं है.
आई थिंक जब पार्टनर वाली हम बात करते हैं या बिजनेस पार्टनर वाली बात करते हैं तो एचआर का रोल है ये कि मैनेजर को या मैनेजर्स जो भी होती है मैनेजर्स दे नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि इफ़ दैट पर्सन इज़ कमिंग अप टू यू इज़ देयर टू हेल्प यू, ठीक है, एंड टू फैसिलिटेट यू। तो वहाँ मैंने भी देखा है, बिल्कुल सही आपने कहा कि बहुत दफ़ा ऐसा होता है, शायद उनको लगता है कि शायद हमें एवेल्यूएट कर रहे हैं, हमें चेक किया जा रहा है, वो जो पुलिसिंग वाली चीज़ें वो दिमाग में आना शुरू हो जाती है। तो आई थिंक वो दैट किल्स द प्रोसेस, इनफैक्ट वो उनके अपने लोगों की भी ग्रोथ को जो है ना वो हिंडर कर रही होती है चीज़। और सर एक बात आपने जी की थी, वो मुझे अशरफ साहब आपसे पूछना है कि जो इंगेजमेंट वाली बात आपने शुरू में की थी ना, जब कल्चर की बात की, तो मैं कैन वहीं पे जा रही हूँ कि हमने वहीं से जो है उसको लेके आना है। इस टॉपिक में काफ़ी बर्निंग क्वेश्चंस हैं। फॉर एग्जांपल इंगेजमेंट की हम बात करते हैं, इंगेजमेंट में बहुत सारी एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइजेशंस कर रही होती हैं। जैसे हमने रिकग्निशन की बात की तो वन ऑफ चीज़ होगी, एक होता है बहुत सारी इंगेजमेंट एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइजेशंस कर रही होती हैं। इंगेजमेंट को थोड़ा सा डिफाइन कीजिएगा, पहले मैं आपसे ये सवाल है। दूसरी बात ये कि क्या ये भी ऐसा है कि लाइक आपने महीने में एक इवेंट कर लिया, आपने यू गॉट डन विद सम नाइस गैदरिंग्स और उसमें आपने बलून वगैरह सब चीज़ें कर ली, आपने बहुत अच्छा नाइस डेकोर कर लिया एंड यू इनवाइटेड सम गेस्ट और बहुत अच्छे से एक इवेंट कर लिया। देन अगेन जैसे आपने कहा था रिकग्निशन की बात भी, गोइंग बैक एट योर वर्क, हाउ कनेक्टेड यू फील। अब वो 365 दिन अगेन वो वाली इंगेजमेंट या क्वार्टरली या महीने में एक दिन की एंगेजमेंट जो एक इवेंट के तौर पे हो रही है, किसका ज़्यादा वेट है एंड हाउ यू सी इट आई मीन बीइंग इम्पैक्टफुल ऑन द पीपल? Employee engagement is actually a very comprehensive subject. People generally reduce it to some cliched activities that HR undertakes throughout the year, which is very generic, which are not bad, but which are very generic. They are not very focused. And engagement is an all-encompassing campaign that has to be run in an organization, where there are two parts of it. One is generic, some common activities that everyone will participate in. And then there are some focused activities when it comes to engagement agenda of the organization, which are customized and targeted. So the generic activities are all that we keep hearing about, that having annual dinners or cricket tournaments or company excursions that they go on, etc. Annual awards, breakfast, different day celebrations, Pakistan Day and Independence Day and Women's Day, and all. Then the engagement, the other focused engagement agenda should consist of things like tailored training plan for the individual, learning opportunities, providing learning opportunities. If someone has that hunger, which all younger ones have these days, they want to learn. So that should be there. Then the cultural engagement, which is basically, as we spoke about, whatever the values of the organizations are. For example, if organization has values like respect, integrity, excellence, technology, let's say these 4 values, then these 4 values should be all over. All over means that not only they should be highlighted on the walls, not only some workshops should be done to drive these values or instill them, not only weekly or monthly campaigns on these values so that people, these keep getting reinforced, but depiction in behavior of every person, more so of the top management. So if people, if the younger ones don't find them walking those values, they just make a mockery of it. And so from cultural point of view, from learning point of view, from living those values point of view, from training and development point of view, from fair appraisal point of view, अगर ये सब चीज़ें एक साथ नहीं हो रही तो वो जो चंद जेनेरिक एक्टिविटीज़ आपने साल में कर ली हैं, they are most certainly not going to engage anyone. Wonderful. वो फिर उसी स्मॉल टॉक का हिस्सा बनेंगी जिस पे वो कह रहे होते हैं कि जी HR ने तो ये 3-4 चीज़ें साल में कराई हैं। बिल्कुल, आपने आई थिंक बहुत ही जो ना वो एक जो है कहते हैं कि दिल की बात होती है आपने की। देखिए होता क्या है कि जब आपने वो कहा ना कि ये जो हम
इट्स वैल्यूज़ है, ठीक है, वो बात हम कहते हैं कि इतनी जल्दी अब इफ़ यू जस्ट पुट ऑन द वॉल और किसी किताब में आप लिख लें, यू शुड, ठीक है, लेकिन अब जैसे एक बहुत कॉमन एलिमेंट होता है रिस्पेक्ट, हम कहते हैं कि इट्स वन ऑफ द वैल्यू, लेकिन दैट रिस्पेक्ट अगर आपको जो है एक्चुअली ऑन द फ्लोर नज़र नहीं आएगी, एंड राइट फ्रॉम द टॉप एग्जैक्टली एज यू सेड, वो जो भी सीनियर मैनेजमेंट से लेके लाइक टू योर ऑफिस बॉयज़, to your janitorial staff, be it anyone in your organization, when they are part of that premises, that work culture, if you are giving the respect, no matter whatever the situation is or whatever the scenario is, लेकिन रिस्पेक्ट का एलिमेंट वहाँ पे मुझे पता हो कि ये मेरी कंपनी की वैल्यू है। अब मैं चाहे जितनी मर्जी सीनियर पोजीशन पे हूँ या मैं चाहे जो है ना बिल्कुल मैं ऑफिस बॉय हूँ किसी कंपनी की या कुछ भी, तो मुझे सेम ट्रीटमेंट मिलेगा और सेम ट्रीटमेंट मेरे लिए होगा, क्योंकि दिस इज़ द वैल्यू ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सो आई थिंक वो आपने बिल्कुल सही कहा कि जब आप यू वॉक दैट एवरी डे, तो वो जो कनेक्शन जो एंगेजमेंट जो है वहाँ से आती है, वो आप किसी इवेंट से सिर्फ नहीं अवेल कर सकते। बिल्कुल ऐसे ही है, जैसा कि ऑफ्ट रिपीटेड एडेज में कहा जाता है कि एक्सेलेंस इज नॉट एन एक्ट बट अ हैबिट। सो व्हाट यू डू डे इन एंड डे आउट, दैट्स व्हाट योर ऑर्गेनाइजेशन इज। Your organization it doesn't consist of things that you do one off. Your organization is what you do every day. Every तो day. अगर every day रिस्पेक्ट नज़र नहीं आ रही तो किसी एक दिन रिस्पेक्ट कर लेने से, बिकॉज आपकी जो रेपुटेशन बनती है वो या परसेप्शन बनती है, कोई एम्प्लॉई ऑर्गेनाइजेशन में अगर एक दिन लेट आता है तो नो वन स्टार्ट्स कॉलिंग हिम और हर लेट कमर। वो जब एक महीना लेट आए देन पीपल स्टार्ट सेइंग कि यार अदनान जो है ना ये लेट कमर है। कोई एक दिन टाइम पर आता है, नो वन सेज के या वेरी पंक्चुअल गाय यार। व्हेन ही और शी कंसिस्टेंटली कीप्स कमिंग ऑन टाइम, देन पीपल दे गैदर अ रेपुटेशन ऑफ बीइंग पंक्चुअल। तो ये सेम गोस फॉर You need to keep on doing it. तो एंगेजमेंट इज एक्चुअली एन आउटकम ऑफ फुलफिल्ड प्रोमिसेस। जो भी प्रोमिसेस आपने की हैं डे वन को ऑनबोर्डिंग के टाइम पर, वो उस दिन से उसका क्लॉक स्टार्ट हो गया। Sure. अब जब वो कोई चीज़ उसके ऑपोजिट होती देखता है या देखती है तो वो ट्रस्ट को एक हिट आती है आपको। ट्रस्ट में डेंट आता है और वो ट्रस्ट नीचे जाता जाता है। सो एज दे राइटली से दैट ट्रस्ट is actually something that results in engagement, and trust is the residue of fulfilled promises. वंडरफुल वंडरफुल, बेहतरीन सर। आपके पास अल्फाज का ज़ख़ीरा बहुत अच्छा, मुझे बताइए पावर स्पीकर। एक दो चीज़ें मुझे आपसे और डिस्कस करनी है जो आपने यही हम लेके चलने के एंगेजमेंट हो, हैप्पी ऑर्गेनाइजेशन, आपने सर्विस की बात की थी, एंड दैट डेफिनेटली प्लेज अ वाइटल रोल इन चेकिंग द पल्स, जिसको हम पल्स सर्वे बेसिकली कहते हैं। अच्छा, बहुत दफ़ा माइंड सेट ये होता है हमारा कि हम कहते हैं कि जी उस वक्त सर्वे करवाएं, ये हमारे साथ डिलूजनल होता है। इस चीज़ को मैं चाहूँगी कि इसमें आप प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें कि हम कहें कि जी जब हमने इंक्रीमेंट्स लगाए हैं मार्च में तब करेंगे सर्वे, लोग बड़े अच्छे होंगे, अच्छा मूड होगा और जो ना अच्छा सर्वे आएगा। ये इस पर कॉमेंट मुझे आप बताइए। आई एम नॉट कॉलिंग इट एनीथिंग, आप बताएं कि इज़ इट अ राइट अप्रोच, नहीं है तो क्या होना चाहिए? Certainly not. वैसे ऑन अ लाइटर नोट, इस साल जिसमें हम बैठे हुए हैं इसमें तो इंक्रीमेंट के बाद ना ही करवाएं तो but anyway, since we are really facing some tough economic circumstances, but coming back to your question, certainly not. The organization should be confident enough कि हम जब भी करा लें तो हमें वो रिजल्ट्स चाहिए, हमें जेन्युइन रिजल्ट्स चाहिए, हमें कॉन्कॉक्टेड। हम डरते क्यों ऐसा जेन्युइन रिजल्ट से? ये मुझे इस पे इसलिए कहें कि देखिए हम इतनी बड़ी एक्टिविटी करते हैं, सारा कुछ करते हैं क्योंकि एचआर ड्राइव करता है। सॉरी मैंने आपको बात में कट किया, लेकिन व्हाई इज द फियर, व्हाट इज द फियर दैट वी डू नॉट वांट टू फेस द रियल थिंग, एंड बिकॉज वहाँ से पहुँचेंगे तो फिर सही कैसे करेंगे? आप मुझसे बहुत मुश्किल सवाल कर रही हैं और वो मुश्किल सवाल इसलिए हैं कि ये दे कैन रियली बिकम कंट्रोवर्शियल, बट आई वुडंट रियली मिंस माय वर्ड्स इन आंसरिंग यू। हम डरते इसलिए हैं that everyone operates with a certain insecurity. If survey is done at this point in time, we might not look good in front of the board. तो इसलिए ऐसे टाइम पे कराओ कि हम रिजल्ट्स अच्छे आएँ तो we can go back, we means top management can go back to the board and say कि देखें लोग कितने खुश हैं। इसके लिए करेज चाहिए होता है, and courage, as I said somewhere during this talk, that courage is something like all other good things, it doesn't come naturally. Courage is an outcome of faith.
अगर आपका फेथ स्ट्रांग है तो फिर आप करेजियस होंगे, फिर आप डरेंगे नहीं, फिर आप कहेंगे जी जो एक्चुअल सिचुएशन है मैं वही बताऊंगा, सो दैट वी कैन वर्क ऑन इट एंड गेट गुड रिजल्ट्स आउट ऑफ पीपल। अगर उनको एड्रेस कर एंगेजमेंट सर्वे के रिजल्ट जो आएंगे उसके नतीजे में एक एक्शन प्लान बनेगा, उस एक्शन प्लान पे अमल अगर कर लिया जाए तो इंशाल्लाह एंगेजमेंट सर्वे के रिजल्ट्स बेहतर आएंगे, लोग इंगेज ज़्यादा होंगे, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, रिजल्ट्स बेहतर होंगे। लेकिन इतनी देर तक का प्लान बनाना हमने शायद छोड़ दिया है। बिल्कुल, मैं बिल्कुल सही ये कहना चाहती। अब देखिए ना, यहाँ पे अशोक साहब बिल्कुल सही कहा कि अगर ठीक है, हमें पहला सर्वे का तो फियर होता है, मुझे लगता है फर्स्ट टाइम वी से पता नहीं क्या रिजल्ट होगा, एंड यू नो जनरली आप कुछ भी करें ऑर्गेनाइजेशन में सारे लोग तो खुश नहीं होते ना, आई थिंक लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, आपको आती है वो चीज़ें, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको आई थिंक इस तरह से मिनिमाइज किया जा सकता है, यू स्टार्ट यू टेक लाइक पहले तो स्टार्ट आप लें एंड देन यू रिपीट इट। जैसे आपने पहले चलिए पहली दफ़ा आपने ये कर लिया कि चलिए साल में हर क्वार्टर अगर नहीं करते एटलीस्ट 6 मंथ्स में करा लें, उसके बाद फिर आप जैसे जैसे आपकी चीज़ें एक्शन आइटम आए उस पर काम करें, फिर थोड़ा आगे चल जाएं, फिर आप 6 महीने बाद कराएं, फिर ठीक है आपने 10 चीज़ें आपके पास ऐसे हैं, 10 इशूज़ आए, आप 2 पे काम कर लें, सो दैट यू हैव समथिंग टू से एंड यू टू पुट दैट ट्रस्ट अगैन बैक, और फिर आप चलते चले जाएं, तो आहिस्ता आहिस्ता मुझे लगता है कि बेहतरी होती जाती है। If any initiative is undertaken just for the heck of it, then that initiative doesn't mean anything. And if, on a similar note, if employee satisfaction or engagement survey has been done on a genuine note in order to understand the concerns of the people in the organization, तो उसके जो results हैं ना उस employee engagement survey के, they become the HR strategy of the organization. Yes. That is the HR strategy that we need to pursue कि इन चीज़ों को 1, 2, 3, 4, 5 हमें इन पे फोकस करना है in order to improve productivity of the organization. Correct. As an enabler. Correct. बिल्कुल ठीक। और आपने जो जेनजी पे थोड़ा सा टच बेस किया था, कुछ अगर थोड़ी सी कुछ हम बता सकें कि ऑर्गेनाइजेशंस, क्योंकि देखिए इवॉल्व होने का प्रोसेस इतना आसान भी नहीं होता। हमने बहुत सारी चीज़ों की बात की, इंगेजमेंट एक्टिविटीज, लर्निंग है, बहुत सारी चीज़ें, तो वो जो बात आ जाती है ना कि शायद कुछ ऐसा भी होता है कि जब हम करंट इस तरह के जो इस वक्त हमारे आसपास थोड़ा सा इकोनॉमिक क्रंच भी आया हुआ होता है, तो हम ओवर कॉन्शियस हो रहे होते हैं कि, और जिनको होना भी होता है एज ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के, शायद हम बहुत ज़्यादा कॉस्ट इनकरिंग चीज़ों में ना चले जाएं, या हम ऐसा ना हो कि जो हम कंपनी के वो कहते हैं ना HR कॉस्ट बढ़ा रहा होता है वो एंगेजमेंट एक्टिविटीज़ में या वट एवर द एक्टिविटीज़। क्या क्या चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जिसमें ज़रूरी नहीं होती कि आप बहुत ज़्यादा मॉनिटरी ही आपको बहुत ज़्यादा स्पेंड करना है, बट इवन देन यू कैन मेक योर ऑर्गेनाइजेशन a happy organization as we started with। तो कुछ ऐसी टिप्स अगर आप दे सकें और बता सकें कि these are the things that not only HR, as an organization we can do. Okay, in terms of the question, let me try to make it very specific that when we talk about undertaking those initiatives which are not very costly or are very cost effective, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम undertake कर सकते हैं, and actually they are perhaps more important than the ones which entail costs. Like for example, हम इसको रिलेट कर लेते हैं एक पर्टिकुलर ब्रीड ऑफ एम्प्लॉइज से जो कि आजकल बड़ी इंपॉर्टेंट है और आने वाले दिनों में मज़ीद इंपॉर्टेंट हो जाएगी, विच इज़ जेन जी, बिकॉज दे आर नाउ गेटिंग इन टू द वर्क फोर्स, दे हैव सर्टन नीड्स एंड फॉर्चुनेटली all those needs do not have a cost tag attached to it. For example, they want to have a flexible working environment. इसमें कोई कॉस्ट का से जुड़ी हुई कोई चीज़ नहीं है, उनको आप फ्लेक्सिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ फ्लेक्सी टाइम और इन टर्म्स ऑफ हाइब्रिड वर्किंग आप दें, दे विल बी वेरी इंगेज्ड एंड मोटिवेटेड. Bringing purpose to their assignment, there is no cost tag attached to it. They want to do purposeful work. ये बड़े स्मार्ट लोग हैं और बड़े ग्लोबली अलाइंड हैं, कनेक्टेड हैं और ग्लोबल डिबेट्स जो लेटेस्ट हो रही हैं उनसे ये अवेयर हैं. तो दे वांट पर्पसफुल वर्क. वो वाला काम जो हम अपने ज़माने में कहा करते थे जब नए नए हमने करियर शुरू किया था कि भाई शुरू के टाइम पे तो फोटोकॉपी करना पड़ेगी, उसके लिए तैयार रहो, या शुरू के टाइम पे जो है पेपर पुशिंग करना पड़ेगी, या ये कि किसी और का काम करके देना होगा. दीज जेन ज़ीज आर नॉट रेडी फॉर दैट. राइट फ्रॉम डे वन दे वांट सम मीनिंगफुल वर्क. दैट डज नॉट मीन कि हाई टॉप मैनेजमेंट रोल, that does not mean कि जी strategic role, but they want something that they can attend to and finish from end to end and take credit for it. So दो बातें हो गई, फ्लेक्सिबिलिटी और हाइब्रिड की,
और दूसरी बात हो गई पर्पसफुल की, तीसरी बात ये है दैट दे वांट टू ऐड वैल्यू, वो ऐसा काम करना चाहते हैं जहाँ पे वो वैल्यू ऐड कर सकें। चौथी बात ये है दे वांट टू वर्क फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ सोशली कॉन्शियस। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है जो सोशल इनिशिएटिव्स में पार्टिसिपेट कर रही है, दैट माइट बी रिलेटेड टू प्लांटेशन, दैट माइट बी रिलेटेड टू वर्किंग ट्वाइस अ ईयर विद एन ऑर्फनेज, दैट माइट बी रिलेटेड टू वर्किंग ऑन द एनवायरनमेंट, वो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जेनजीज काम नहीं करना चाहते जो सिर्फ प्रॉफिट पे फोकस्ड है। तो इन सारी चीज़ों में हमें कहीं कोई कॉस्ट टैग नज़र नहीं आता। एक ख़ास हमें उनको माहौल देना है, एक ख़ास एनवायरनमेंट देना है विच विल मेक देम मोटिवेटेड। वो तो ये बात कर ही नहीं रहे कि जी हमको जब तक 1.5 लाख रुपए की नौकरी नहीं मिलेगी हम नहीं करेंगे। वो 1.5 लाख की नौकरी छोड़ देंगे उस ऑर्गेनाइजेशन की जहाँ पे ये 4 चीज़ें नहीं हैं और लाख रुपए पे चले जाएंगे। बिल्कुल आपने सही कहा और ये बहुत ज़रूरी है इस बात को समझना। आई थिंक एचआरस के लिए इट्स अ ट्रेजर दैट यू आर शेयरिंग, बिकॉज आई आल्सो गॉन थ्रू द मल्टीपल हायरिंग ड्राइव्स में हमने किया है, या एमटी की ड्राइव्स हमने करती है मल्टी लाइक टॉप ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ द कंट्री। आई मेट लाइक अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जो कि वही बात कहते हैं हमेशा कि व्हेन दे केम फॉर इंटरव्यू पार्ट बनने के लिए उस ड्राइव का, दे फर्स्ट रिसर्च अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन कि ये रिसर्च, और उन्होंने दे हैव कोटेड दोज थिंग्स इन फ्रंट ऑफ मी कि जी आपकी ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे ये चीज़ की थी, आपने जो नहीं वेलफेयर के लिए काम किया, या आपने पेशेंट्स के लिए वाला काम किया। सो दैट अट्रैक्टेड अस टू बी पार्ट ऑफ दिस ड्राइव। तो यू आर वेरी राइट। एंड सेकेंडली वो आई थिंक दे टॉक अबाउट डेफिनेटली मनी और वो जो आपका सैलरी और सारी चीज़ होती है, लेकिन दैट कम्स एट द एंड। तो देयर इज़ अ लॉट दैट एचआर कैन डू इन दैट, नॉट ओनली एचआर लाइक एज एन ऑर्गेनाइजेशन वी कैन डू। और फिर अगर आप एक इनरिचिंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर रहे हैं, इनरिचिंग इन टर्म्स ऑफ दे ऑल्सो वांट रोटेशन, वो एक काम बहुत टाइम तक नहीं करना चाहते। आपने उनसे एचआर की हम बात कर लेते हैं। एचआर में आप एक मैनेजमेंट ट्रेनिंग लेकर आए जेन-ज़ी का, और उसने आके रिक्रूटमेंट में या टैलेंट एक्विजिशन में काम शुरू किया। नाउ ही और शी वुड एक्सपेक्ट कि 6 से 8 महीने के बाद उसको हम रोटेट कर दें रिवॉर्ड्स में, फिर वहाँ से हम रोटेट कर दें। दे वांट टू गैदर एक्सपीरियंसेस एंड विच इज़ अ गुड थिंग आई वुड से। मतलब अगर पहले वाली बात को आप देखें कि अगर वो चाहते हैं कि एक सोशली अवेयर ऑर्गेनाइजेशन हो, सोशली कॉन्शियस हो, तो दैट इज़ पुशिंग ऑर्गेनाइजेशन टू ब्रिंग दैट एलिमेंट इन दी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि जनरली हम नहीं सोच रहे होते हैं। जैसे हम रोटेशन की आपने बात की, तो आपको ऑर्गेनाइजेशन की डिपेंडेंसी भी ऑन द टैलेंट वो हो जाती है कि लाइक इफ़ पीपल हैव मोर मल्टीटास्कर या ज़्यादा उनके पास होती है, तो इवेंचुअली इट विल लीड, वो हमारे लिए मीडियम टर्म में more useful हो रहा है। Yes, mainly it is helping the organization only. True. I think wonderful tips that you have just shared, sir. अशोक साहब, मैं ये चाहूँगी कि हम अक्सर HR के लिए एक वर्ड यूज़ करते हैं कि there's a bridge between the people and the board or the organization की जो management है। एक और पर्सपेक्टिव से इस चीज़ को देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन, जैसे हमने बात की कि हमारी ही कंट्री में हमें नजर आता है टॉप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन से आपने काम किया एंड यू हैव सी प्रैक्टिस दोस्त कल्चर्स। मेरा कुछ एक्सपीरियंस है, किसी और का एक्सपीरियंस है, जो एचआर की बहुत बड़ी फर्टर्निटी है पाकिस्तान में, तो डेफिनेटली उनके मल्टीपल एक्सपीरियंसेस होते हैं एंड दे हैव सीन द बेस्ट ऑफ द कल्चर्स एंड दे हैव सीन द कल्चर्स जहाँ पर बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है। हाउ डू यू थिंक दैट वी कैन एज एन एचआर फर्टर्निटी, एज एन एचआर कम्युनिटी, और ये फोरम कह लें, कुछ भी कह लें, लाइक उनके एक्सपीरियंसेस शेयरिंग उस तरह की नहीं होती, या ऐसा नहीं होता कि हम लोग उसको कलेक्टिवली वी ट्राई टू मेक अ वर्क प्लेस एज बेटर एज वी कैन। आपको लगता है कि ये कमी है और उस पर काम किया जा सकता है? जी जी बिल्कुल, ये कमी बेशक है और ख़ासी ज़्यादा है। और ऐसा नहीं है कि एचआर मीट्स या एचआर गेट टुगेदर्स नहीं हो रहे, बिल्कुल हो रहे हैं, और मुख्तलिफ़ इदारे हमारे यहाँ इसको प्रमोट भी कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब से कुछ अर्सा पहले, जस्ट टू कोट अ रियल लाइफ एग्जांपल, पाकिस्तान सोसाइटी फॉर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट जो है PSTD ने, और अक्सर करते हैं, वो काफ़ी वाइब्रेंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो उन्होंने रमज़ान में एक इफ्तार किया। जो उसकी मुझे सबसे अच्छी बात लगी, वही आपकी सवाल के जवाब में मैं कहना चाहूँगा कि उसमें खाली सीनियर एचआर प्रोफेशनल्स नहीं आए, उसमें बहुत सारे और भी यंगस्टर्स, मिडिल मैनेजर्स सारे मौजूद थे, उन्होंने आपस में इंटरेक्ट किया। ठीक है, ऐसे मौक़ों पर बहुत तफसील से बात करने का मौका तो नहीं मिलता, लेकिन जितना भी मिलता है वही ना होने से बेहतर है। तो मेरा जो गिला है वो ये है कि अगर ऐसा होता भी है, और हो रहा है, बहुत अरसे से हो रहा है एचआर कॉन्फ्रेंसेस, और लेकिन उसमें अक्सर व बेशतर बहुत सीनियर प्रोफेशनल्स आते हैं, और जो मिडिल मैनेजर्स हैं, जो लोअर मैनेजमेंट में हैं, वो नहीं आते। और सबसे ज़्यादा ज़रूरत इंटरेक्शन की उनको है, ताकि जैसा आपने कहा और सही कहा कि जो नॉलेज डेफिसिट है
वो जल्दी जल्दी ट्रांसफ़र किया जाए और वो उन तक आए, सो दैट दे कैन कैरी द टॉर्च अहेड। एक बात ये, दूसरी एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो एचआर के पर्सपेक्टिव में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ओवर द ईयर्स हम ये देख रहे हैं कि मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस हमारे यहाँ से कम होती जा रही हैं। इस श्रिंकेज से जो बेस्ट प्रैक्टिसेस का ट्रांसफ़र था, जो नॉलेज ट्रांसफ़र था फॉर कन्वर्टिंग दिस कंट्री इनटू अ नॉलेज इकोनॉमी, वो हैम्पर हो रहा है। तो अब ज़्यादा ज़रूरत है तेज़ी के साथ कि हम ऐसे फोरम्स और ऐसे इवेंट्स को ज़्यादा प्रमोट करें जहाँ पे जल्दी जल्दी नॉलेज ट्रांसफ़र हो बिफोर एवरीवन गॉड फॉरबिड गोज़ अवे। इसलिए कि ऑल्दो इसका काउंटर भी लोग देंगे कि जी वो तो ठीक है, ऑर्गेनाइजेशंस तो जा रही हैं, लेकिन दुनिया इतनी कनेक्टेड हो गई है थ्रू गूगल एंड सोशल मीडिया कि अब नॉलेज इज़ नॉट रियली समथिंग दैट वी रियली नीड टू गो वेरी फार टू लुक फॉर। लेकिन बहरहाल सोशल मीडिया और क्या कहते हैं गूगल और ये सारे जो हमारे पास एवेन्यूज़ मौजूद हैं, इसमें ये बड़े इम्पर्सनल एवेन्यूज़ हैं। तो वो जो इम्पैक्ट पर्सनालिटी का इंटरेक्शन, ह्यूमन वार्मथ जो होती है, वो इसका हिस्सा नहीं होती। तो वो उसको हमें चाहिए कि जितना हम बढ़ा सकें, बिकॉज ह्यूमन इंटरेक्शन इज़ इररिप्लेसेबल। और उसका मौका, जैसा आपने राइटली कहा, कि बहुत ज़रूरी है कि ये इंटरेक्शंस और ये इंटरवेंशंस बढ़ें ताकि नॉलेज ट्रांसफ़र हो और वो गैप ब्रिज हो। बिल्कुल ऐसे ही है, ये बिल्कुल आपकी बात से मैं क़तई तौर पे मुत्तफ़िक़ हूँ, कोई इख्तिलाफ़ नहीं है कहीं पर। और ये इंतहाई अहम बात है, इसलिए कि हमने आज की गुफ्तगू में बीच में कहीं पे ये डिस्कस किया था कि लोगों को एलिवेट होना ही उस वक्त चाहिए जब वो पीपल मैनेजर बनने के काबिल हो जाएं। और पीपल मैनेजर बनने के काबिल आप अपनी सब्जेक्ट नॉलेज पे नहीं होते, आप अपनी कोचिंग, मेंटोरिंग, पीपल मैनेजमेंट स्किल्स पर होते हैं। तो अगर लाइन मैनेजर या सुपरवाइज़र या फंक्शनल हेड अगर लोगों को सिखा नहीं रहा, और सिखा क्या नहीं रहा, हो सकता है उसको टेक्निकल स्किल सिखाने की ज़रूरत ना हो, उसमें थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत हो, उससे ज़्यादा उसको ज़रूरत क्या होती है जो वो नहीं करते हैं। एंड यू हैव राइटली पॉइंटेड दैट आउट कि इस ऑर्गेनाइजेशन में जीने के तरीके क्या हैं, बिकॉज एवरी ऑर्गेनाइजेशंस DNA इज़ डिफरेंट। हाउ टू थ्राइव इन दिस न्यू एनवायरनमेंट यू हैव कम इनटू, दैट्स व्हाट दे आर सपोज टू फोकस ऑन एंड डू, एज वी कॉल इट, हैंड होल्डिंग, जो कि वो नहीं करते। तो हो सकता है उन्हें काम उसको एज सच, लेट्स से समवन हैज़ बीन हायर्ड एज प्रोक्योरमेंट मैनेजर, तो उसको प्रोक्योरमेंट का काम मोर और लेस आता होगा, लेकिन वो प्रोक्योरमेंट का काम इस ऑर्गेनाइजेशन में कैसे करना है, दैट्स एन एंटायरली डिफरेंट थिंग। एंड दैट्स वेयर देयर मेंटोरिंग, देयर हैंड होल्डिंग, देयर कोचिंग इज रिक्वायर्ड। एंड इन माई ओपिनियन, very humble opinion, all in today's age, all line managers should be coaches. And coaching is a very, very defined and a very specialized area. अगर वो अच्छे कोच नहीं है तो उनको तो पीपल मैनेजर प्रमोट ही नहीं होना चाहिए। The coaching is a specific, is a big topic I would say, लेकिन चले हम आज का टाइम लिमिटेड होगा, लेकिन हमारे क्योंकि स्ट्रक्चर्ड इस तरह का कोई सिलसिला है नहीं कोचिंग या मेंटोरिंग करने का। आई नो इन कपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपने भी देखा कि जो कि कुछ लेवल पे चीज़ें कर रही होती हैं,
लेकिन जनरली हम इसको मिस आउट करते हैं। क्या आपकी सजेशन होगी इस हवाले से? दो तरह से मैं चाहूँगी कि अगर इसको कर दें, हम आसान कोशिश करते हैं कि कम टाइम में इसको कर सकें, कि जो सीनियर्स हैं एक तरफ, हम लाइक ऑन द अदर साइड ऑफ द टेबल हाउ दे कैन प्ले अ रोल। जैसे आपने कहा कि मैनेजर ठीक है, कोचिंग की ट्रेनिंग हर बंदा अगर नहीं भी लेता, लेकिन हाउ दे कैन बी अ गुड कोच, अगर थोड़ा एक दो चीज़ें आप बता सकें। एंड और उसको दूसरा स्पेक्ट्रम भी बताइए कि जो हम जूनियर लेवल पे हैं, अभी हम ग्रो नहीं किए, हाउ इम्पॉर्टेंट इज़ टू हैव अ मेंटोर और अ कोच, एंड क्या आपका एक्सपीरियंस कहता है या आपकी नॉलेज क्या कहती है इस हवाले से? I would say, based on my experience, my personal experience, that having a mentor, I'll answer the second question first. Having a mentor or a coach early in the career plays a decisive role in your career. And decisive means फैसला कौन. तो अगर वो आपको, आप लकी हैं अगर आपको मिल गया है, और आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि हमारे यहाँ इसका कल्चर या इसका ट्रेंड हमारे यहाँ नहीं है, लेकिन अल्लाह करे कि हो जाए, इसलिए कि जो मेंटोर होता है ना, ये आप अपने आप को इतना अच्छी तरह से नहीं समझते जितना आप अपनी लाइक डिसलाइक तो समझते हैं, लेकिन उस लाइक डिसलाइक की बिना पर आपको जाना कहाँ चाहिए ये आपको उस वक्त समझ में नहीं आ रही होती जब आपकी उम्र 22-23 साल की होती है। मेंटोर ये काम करता है, आपको एक डगर पे डाल देता है और फिर उस डगर पे आप एक्सेल करते हैं अगर सही डगर पे पड़ गए तो, और वो आपकी लाइक डिसलाइक से या आपकी स्ट्रेंथ और एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट से लिंक्ड है। तो ये ज़रूरी है। और इस पर अगेन मैं इकबाल फिर हमारी महफिल में आ जाएंगे। इकबाल ने कहा था कि ये फैज़ान नज़र था या मकतब की करामत थी, सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फ़र्जंदी। तो वो किसी मकतब में नहीं गए थे, फैज़ान नज़र था। फैज़ान नज़र क्या होता है? फैज़ान नज़र मेंटोरिंग होती है। तो वो चीज़। तो अब कमिंग बैक टू द अदर साइड, टू स्टार्ट विथ, लेट्स नॉट टॉक वेरी रेवोल्यूशनरी, बट टू स्टार्ट विथ एटलीस्ट HR में कम से कम 2 से 3 लोगों को फॉर्मल कोचिंग ट्रेनिंग मिलना चाहिए। जब वो मिल जाए तो वो ट्रेन द ट्रेनर बन जाएं और अपनी ऑर्गेनाइजेशन की तमाम सीनियर मैनेजमेंट को कोचिंग के बेसिक्स, जो बहुत आसान है, जो मुश्किल नहीं है, वो 4, 6, 8 बेसिक्स उनको बताएं। बताने के बाद उनको थोड़ा सा ट्रेन भी करें, यानी छोटे छोटे उनके सेशंस बना लें जिनको अपने एरिया में मैंडेटरी कर दें कि आपने अपने डिपार्टमेंट के 2 लोगों को कोच करके, और वो हमसे ऑडियो जो है वो आपने HR से शेयर करनी है ताकि वो थोड़ा सा थ्रू हो जाए। और उसके बाद फिर वो अपने अपने एरिया में कोचिंग शुरू कर दें। जहाँ जहाँ HR की हेल्प चाहिए वो HR से हेल्प लें। लेकिन ये चीज़ स्टार्ट होनी चाहिए। इस पर हमारी तवज्जो बहुत कम रही है हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली, और ऐसा नहीं हमारे मुल्क में, दुनिया में भी कम रही है। अब ये चीज़, अब दुनिया की तमाम फॉर्च्यून 500 कंपनीज़ जो हैं, कोई एक ऐसी नहीं है जिसके CEO का कोई कोच ना हो। एक ऐसी नहीं, देयर इज़ नो एक्सेप्शन। तो अगर फॉर्च्यून 500 का CEO कोच के साथ बैठ रहा है तो फिर किसको ज़रूरत नहीं है? सही। आपने कहा कि HR को कोचिंग और मेंटोरिंग को सीखने से, उससे ज़रा सा एक स्टेप पीछे आए। ये मैं ज़रूर चाहूँगी कि आपने वी वर टॉकिंग अबाउट दिस ऑफ कैमरा कि HR हेड्स का, HR लीडर्स का, या जनरली किसी भी शख्स का, जब आप ह्यूमन रिसोर्सेज में आ गए हैं, व्हाट इज़ द बेसिक बिहेवियरल रिक्वायरमेंट ऑफ दैट पर्सन जो इस एरिया में आ गया है HR के? देखिए, HR इज़ अ सर्विस डिपार्टमेंट, सो दी ऑल HR मैनेजर्स, ऑल HR BPs, क्या करना है? मुस्कुराना चाहिए था उनको दे शुड बी वेरी फोर्थकमिंग, वेरी रिसेप्टिव एंड ग्रेट लिसनर्स। अगर वो लिसनर अच्छे नहीं हैं और रिसेप्टिव नहीं है और फोर्थकमिंग नहीं है इन देयर बिहेवियर, दे शुड बी वेरी प्लेजेंट, तो कोई उनसे कुछ शेयर ही नहीं करेगा। एक्सेसिबिलिटी फोर्थकमिंग का ही पार्ट है। अगर फोर्थकमिंग है तो इसका मतलब एक्सेसिबल है, अगर और वाइसा वर्सा। तो अगर वो एक्सेसिबल नहीं है, रीचेबल नहीं है, तो वो फिर पेपर पुशर्स हैं, फिर वो कुछ पॉलिसीज़ हैं जिनकी कंप्लायंस चेक कर रहे हैं सारा दिन। वो लोगों पे, द आइडिया इज़ व्हाट, द आइडिया इन HR मोर सो एंड इन लाइफ एज वेल, अगर किसी एक ऑब्जेक्टिव, किसी एक गोल के साथ, मेरी नाक़िस तरीन राय में अल्लाह ताला ने अगर हमको भेजा है दुनिया में, तो वो एक है सिर्फ, creating a difference in other people's life. There is no other objective, and our own benefit. ज़ाहिर है हम सब सेल्फिश हैं, हमारी फितरत और हमारी खसलत में है अपना इंटरेस्ट पहले देखना। तो जो लोग इस पे फोकस्ड हो जाते हैं, क्रिएटिंग अ डिफरेंस इन अदर पीपल्स लाइफ, उनका अपना फ़ायदा एज ए बाई प्रोडक्ट आता है, मल्टीप्लाई होकर आता है। मल्टीप्लाई होकर आता है। अल्लाह ताला कहता है कि ये तुम
मेरे काम में हाथ बटाना तुमने शुरू कर दिया है, अब तुम देखो मैं तुम्हारे लिए क्या करता हूँ। बेहतरीन बात आपने की है। तो HR का रोल यही है। बिल्कुल सही कहा। देखिए तमाम एशिया वालों के लिए जी आपको प्लेजेंट होना ज़रूरी है। आई थिंक इन शॉर्ट वे अगर मैं कहूँ कि प्लेजेंट और एक्सेसिबल होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप पहुँचना जो ना पहुँचने से पहले इंसान हज़ार दफ़ा सोचे कि जी एशिया वालों के पास जा रहे हैं बात करने के लिए। आई थिंक अगर वही सिर्फ आप उसको मिटिगेट कर लें तो HR डिपार्टमेंट पे वो तख्ती नहीं होनी चाहिए जिस पे लिखा है कि अनऑथराइज्ड पीपल आर नॉट अलाउड। आई थिंक इससे अच्छा मैं उसको डिफाइन नहीं कर सकती हूँ। Wonderful, thank you so much, Arshad साहब. I think it has been a pleasure talking to you. Wonderful discussion and बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मैंने आपसे थोड़े क्रिटिकल सवाल थे लेकिन आपने बहुत अच्छे से उनका जो है जवाब दिया जैसे मैं चाहती थी। और जैसा कि मुझे लगता है कि ये डिस्कशन हमारे देखिए मकसद इन डिस्कशंस का ये कि वी शुड नॉर्मलाइज दिस डिस्कशन। ठीक है, ये हमेशा कॉर्नर मीटिंग्स में नहीं होने चाहिए, ये डिस्कशन ऑन द टेबल होनी चाहिए सो दैट वी reach to a solution. और आप जैसे लोग definitely the people who have been on the most senior levels, most driving the organization at the leadership level, the C-suite level, तो आप तो you are the I think the person to talk about this thing. No, thank you very much for inviting. I genuinely enjoy it because the quality of discussion does not only depend on someone who's being asked questions, it also depends on the quality of questions. तो उससे फिर डिस्कशन बड़ा रिच हो जाता है एंड आई थिंक दिस आई बिलीव इट बिकेम क्वाइट अ यूजफुल डिस्कशन एंड आई होप योर व्यूअर्स विल गेट बेनिफिट आउट ऑफ इट। कुछ लोगों को सोचने का एटलीस्ट मौका मिलेगा एंड दे विल गेट ऑन टू द थिंकिंग पाथ। प्लीज कोई क्लोजिंग मैसेज आप देना चाहें सबके लिए? देखिए क्लोजिंग मैसेज तो कोई ऐसा स्पेसिफिक नहीं है एक्सेप्ट कि जी लेट्स कीप इट HR स्पेसिफिक दैट इन HR you have to be compassionate, you have to be empathic, you have to understand what employees and people are going through. वो अगर आप नहीं समझेंगे even to the extent of personal circumstances if allowed by the employee, not by poking your nose into it, if allowed by the employee, जितना अच्छे से हम उसे समझेंगे उतने अच्छे से उसकी नीड्स को हम एड्रेस कर सकेंगे, उसको फैसिलिटेट कर सकेंगे, which is one of the key roles of HR. Thank you so very much again, Arshad Saab, for being part of this discussion and our guest. It has been wonderful as always. सिर्फ एक बात आपने की थी मेंटोरिंग एंड कोचिंग की, तो उसमें मैं टच बेस कर दूँ इंशाल्लाह इट्स लाइक एट द ड्रीम जॉब प्लेटफॉर्म पे #ड्रीम जॉब पे हम लोग आई हैव अ ड्रीम टू इनफैक्ट आई हैव दिस थिंग रियलिटी कि हम बना सकें एक ऐसा कोई मेंटोरिंग कोचिंग का प्लेटफॉर्म जिससे आप जैसे हमने ये अभी तो टॉक्स शुरू किए हैं लेकिन हाउ we can make it accessible for the people who can get to a coach or mentor whenever they need it, and so that जैसे आपने कहा कि we can make difference in people's life as much as we can. तो आप हमसे भी सेशन तक नहीं रखेंगे, इंशाल्लाह आपसे आगे भी आपको जरूरत देंगे इंशाल्लाह why not, and thank you once again. Thank you so much. Stay blessed. अल्लाह हाफ़िज़. Passion to drive things. तो जुड़े रहिएगा इस चैनल के साथ। हम आपको बताएंगे उन तमाम सवालों के जवाब जो कि आपको आजकल परेशान करते हैं कि आपने अपना करियर कहाँ से और कैसे शुरू करना है। सो स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल बिकॉज हमें यकीन है कि ये तकरीबन 1 घंटे का डिस्कशन इस चैनल पर जो आप सुनेंगे आपके अगले 5 साल की डायरेक्शन ज़रूर सेट कर देगा।